میں جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج وہ یہاں پر تشریف لائے. ان کی بہت مہربانی. صحت کا بھی انہوں نے دریافت کیا, ان کا بہت شکریہ. اور پھر آج ہم نے جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, کل میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو ہم اس وقت ملک کو جو مسائل درپیش ہیں, جو چیلنجز, جو مشکلات ہیں, ان کے اوپر ہماری مکمل اتفاق ہے کہ اس حکومت نے 2 سال میں پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے کہ 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ آج دیکھیے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے, اور کووڈ نے پوری دنیا میں لاکھوں اموات ہوئیں اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اور ہم سب دست پہ دعا ہے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جان چھڑوائے. لیکن دنیا میں کووڈ کے بعد قیمتیں زمیں بوس ہو گئی, یعنی بالکل, یعنی اس حد تک قیمتیں گر گئی ہیں, چاہے وہ اشیاء خرد و نوشت ہوں, چاہے وہ کاروباری جو مٹیریلز ہیں, سامان ہیں, سب کی قیمتیں گریں. پاکستان میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یہ ایک ایسی ایک دل خراش یہ بات ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ چینی سکینڈل جب سے شروع ہوا اس وقت 60-65 روپے چینی تھی, آج یہ 100 روپے پہنچ گئی ہے. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے, کم از کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں نے یہ نہیں دیکھا, اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے. اور ابھی یعنی نارملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے وہ پھر وہ نکالتی تھی. آج خود جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی, اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھایا نہیں جاتا, اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے, برداشت نہیں کر سکتی. پھر پیٹرولیم کے آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائسس ہوا کہ کئی ہفتے تیل ملا نہیں, اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ 35% ان کی قیمت بڑھا دی. تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بوم-چھل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا, اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں. اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی, انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے, اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراً اس کو کریکٹ کرنا پڑا اور کہا کہ یہ 1.9 ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, یہ 1.9 ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گیا, اور کاروباری آدمی اب اتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ عمران خان نیازی ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ
ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائی تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حکومت کے اس دوران. یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کی اس وقت حالت اظہار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو سدھار سکے. اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں، لیکن یہ ایک جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے. آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹیٹس ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا، اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا، جو بھی اس بارے میں اسٹریٹجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے. میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. شکریہ. آپ سب کا شکریہ، اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. ہمیں دعوت بھی دیا، چائے بھی پلایا، اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے، یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا، جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا، تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی، پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے، ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے، ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری، نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری، نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہوئی ہے، ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں، ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او، بلین ٹریز کے لیے این آر او، معلم جبا کے لیے این آر او، فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس معلم جبا کے لیے این آر او، فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او، اور یہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا، جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی. شکریہ جی. ون بائی مریم، ون بائی ون آپ آگے آئیں. بلاول صاحب یہ بتائیے گا، اور شہباز صاحب آپ کو سوال ہے کہ کیا اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر متفق ہیں کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے یا فوری طور پر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پر آپ دونوں کا اتفاق ہے. دوسری بات یہ کہ رہبر کمیٹی وہ ہے وہی ہے شاید جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے دوران بنی تھی، تو وہ ابھی تک فنکشنل ہے.
जहाँ तक हमारा इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। अब ये जब हम बैठेंगे APC पे, उस पे हमें कंसेंसस बनाने पड़ेगा और सारी सियासी जमातों को एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि किस ताश को हम अब खेलना चाहते हैं। जहाँ तक रहबर कमेटी की बात है, ये धरना की वक्त से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है तब से ये रहबर कमेटी बनी और जहाँ हमारा APC हो रहा है, हम चाह रहे थे कि इस APC से पहले सारी सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो आपस में मिलके एक तफसीली प्लान बना के ताकि हमारा APC जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। शहबाज साहब और बिलावल साहब, आप दोनों से ही है, आज वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि नैब की जो तरामीम की बात कर रहे हैं अपोजिशन, वो किसी तौर पर भी हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। एक तरफ पेटिव का जो कानून चाह लेके आ रहे हैं, साथ साथ नैब की भी आपकी जो तरामीम है उन पर गौर नहीं हो रहा, तो फिर क्या आप अपोजिशन क्या देख रही है? अभी आपने इस मुलाकात में भी इस पर कुछ डिस्कशन जी बिलाल साहब भी जवाब देंगे, मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि ये जो हुकूमत के साथ जो नुमाइंदों के साथ जो बातचीत हो रही है, ये कोई अपोजिशन कोई उनसे हुकूमत से कोई रिलीफ की भीख तो नहीं मांग रही थी। अपोजिशन ने चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो या और भी कोई अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने 2 साल नैब न्याजी गठजोड़ के जो हथकंडे हैं, जो चीरादस्ती है, उसको अपना वो सौंपतें अकूबत खाने की, जेल खानों की कैदें बर्दाश्त की और अभी भी कर रहे हैं बिल्कुल। तो हमें अगर आप ये कहें कि हम उसके लिए रिलीफ उनसे ले रहे थे, तो ये तो वाक़यात जो 2 साल के हैं वो उसकी नफ़ी करते हैं ख़ुद कि हमने तो इन 2 सालों में जो जबर और तशद्दुद, जो नाइंसाफ़ी जो बरती गई और जो यकतरफ़ा जो नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई अपोजिशन के मुंह को बंद करने के लिए जो की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने ये कहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, जो एक बड़ा हमागीर फ़ैसला है ख्वाजा साद रफ़ीक के बेल के, उसको पढ़ लें और उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में नैब के बारे में निशानदेही की, हमने कहा कि उसकी जो करेक्शन है उसको सही इंसाफ की बुनियादों पर, अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं हम में से भाग रहा। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर बदतरीन विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग हो रही है। जी फैशिस्ट कह लें और मिसोलिनी से और उन सब से आगे बढ़ गई। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि BRT पेशावर का क्या हशर हुआ, कहाँ 30 अरब रुपए से 100 अरब रुपए से क्रॉस कर गई, 100 अरब रुपए से। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई BRT पेशावर में जो इस वक्त जो अपना अरबों रुपए के घपले हुए हैं, ख़ुद उनकी रिपोर्ट है, ख़ुद एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है और आज तक भी वो उसी तरह खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा, मालम जब्बा है और बेशुमार ये चीनी का स्कैंडल है, ये गंदम का स्कैंडल है, ये पेट्रोल का स्कैंडल है। किस किस स्कैंडल की बात करें? हमें 2 साल से जो जिन अल्फाज से अपना इन्होंने हमें नवाजा, दिन रात चोर डाकू कहा, लोग आज पता है कि कहते हैं, वो बहस कहते हैं, बहस बराए बहस। उन्होंने काम तो किया था, दिन रात काम किया था। इन्होंने मासवाए पाकिस्तान के अरबों खरबों ज़ाया करने के अलावा और पाकिस्तान के गरीब कौम का वक्त ज़ाया करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये है नैब के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और फिर जो कानून दानों की जो एसोसिएशन बार्स हैं, उन्होंने जो कहा है कि जनाब इसकी आप फिलफौर इसको आप रिविज़िट करें नैब के कानून को और इसका इतलाक़ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हुकूमत की काबीना में जो लोग बैठे हैं, कौन अपना जो चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन आटे के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन पेट्रोलियम के स्कैंडल में, किसको पूछा गया? मासवाए कि जनाब दिखावे के लिए आप एक तरफ हो जाएं। तो हमने ये कहा है, हमने कोई
उनसे रिलीफ की भीख नहीं मांगी। मैंने एक मिनट जो हमारे दोस्त ने ये इस सवाल उठाया है, बड़ा सीरियस इशू है कि हुकूमत को जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो यू टर्न्स और स्पिन्स चला रहे हैं, इस पर इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आप कह रहे हो नेशनल असम्बली फ्लोर पे खड़े हो के इस पर तकरीर कर रहा है। अगर मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना नहीं होता, मैं वहाँ उसको जवाब देता, आपके थ्रू जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि अगर वो नैब पे बात कर रहा है, फैटिव की बात पर, शुरू उसने इस बात से करना चाहिए कि कुलभूषण यादव के लिए जो ऑर्डिनेंस निकलता है, जो उसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, आज तक उस पर क्यों नहीं जवाब दे दिया है? आज तक जो रेमंड डेविस के वाक़या पे हीरो बनने निकल रहा था, वो कुलभूषण यादव पे खामोश क्यों है? और दूसरा, जहाँ तक नैब की बात है, जहाँ तक फैटिव की बात है, अपोजिशन का मौक़िफ़ क्लियर, क्लिस्टर क्लियर है। हम पहले दिन से एक ही बात कर रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ पे और वज़न आया है, हमारे मौक़िफ़ पे अब जस्टिस बाकर भी करा है, हमारा मौक़िफ़ पे भी अब खोसा साबिक चीफ जस्टिस साहब के जो हुक्म है वो भी है, हमारा मौक़िफ़ पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, और हम अपने ही मौक़िफ़ पे कायम हैं। हुकूमत ने अपना नैब ऑर्डिनेंस पेश किया, हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो हमें चाहिए। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अमल करो, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कहता है वो अमल करो। और नैब हो या फैटिव हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक़ और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है। तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम फैटिव को सपोर्ट करेंगे अगर वो पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हकूक़, जमहूरी हकूक़ पर हमला करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक नैब का जो कानून है, नैब का जो अदारा है, वो काला कानून है, उसमें बेहतरी लियाना का हर पाकिस्तानी का फोकस, हर पार्लियामेंट्री पार्टी का फोकस होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक फैटिव की बात है, वहाँ इन्होंने बड़ा गेम खेला है, बिकॉज फैटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नेशनल एक्शन प्लान के लिए और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए जितना कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम दिए हैं, किसी और ममालिक ने नहीं दिया है। और अब ये हुकूमत, ये जमात, जिसका ना दहशतगर्दी का मुकाबला में कोई दिलचस्पी है, ना इंतहा पसंदी का मुकाबला का कोई दिलचस्पी है, वो पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट है, वो ब्लैक लिस्ट जाने का ख़तरा है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाले, पाकिस्तान की अवाम को कैसे हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकालें। अगर उसका दिलचस्पी है तो उनका दिलचस्पी ये है कि फैटिव के नाम पे हम कैसे इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत मुशर्रफ जैसे और ज़िया-उल हक जैसे पावर्स दिलवा दें। अपोजिशन की जमातें अपना जिम्मेदारी पूरा करते हुए फैटिव का लेजिस्लेशन हो या हुकूमत का डाली हुई नैब का ऑर्डिनेंस हो, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। मैं आज अपोजिशन लीडर के सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि अपोजिशन जमातें सिर्फ उस सूरत में नैब हो या फैटिव हो वहाँ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने को तैयार है जहाँ तक इंसानी हकूक़ और जमहूरियत की बात है। हुकूमत का जो रवैया है कि वो समझते हैं कि फैटिव का नाम लेके वो अपने आप को ज़िया-उल हक जैसे आमरीत और मुशर्रफ जैसे आमरीत का पावर्स दिलवाएंगे, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ इजाज़त नहीं देंगे। तो जितना भी ये सेलेक्टेड सियासतदान या उनके नुमाइंदे मीडिया पे ये स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका झूठ बेनकाब करें, आप उनका झूठ बेनकाब करें। वो आपके हुकूक पे हमले कर रहे हैं, सिर्फ मेरे हुकूक पे हमले नहीं कर रहे। जी उमर, लास्ट ये बताएं कि आप अभी बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन के हवाले से गुफ्तगू हुई आपकी, आप समझते हैं कि ईद उल अज़हा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन जमातों की इस हद तक कामयाब होगी कि हुकूमत को गिराने में आप लोग कामयाब हो जाए? और दूसरी जानिब नैब की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, 17 तारीख तक आपकी जो बेल है, यहीं पर रेड भी किया था। अगर इसी तरीके से सारी सूरत हाल रहेगी तो फिर क्या हिकमत अमली? मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा रेड नहीं कर पाएंगे। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे अब कि चलने की कुछ सूरत हाल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी
इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और गरीब आवाम, माँओं और यतीमों और बेवाओं की उसी में उनकी आफियत है। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह APC पहले, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पहले हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद APC की मीटिंग होगी, रैबर कमेटी के बाद, उसमें इंशाअल्लाह एक ठोस प्लान बनेगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों के की उमंगों के मुताबिक वो प्लान होगा इंशाअल्लाह। एक सेकंड जी, एक मिनट जी, आप सवाल ऐसे नहीं हो सकता जी, ऐसे नहीं। एक इमरान खान ने धरना दिया था सर आपकी हुकूमत के अंदर और बड़ा कोई ना पसंद उसके बाद मौलाना फजल रहमान अकेले गए थे इस्लामाबाद, तो तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई हैं, क्या आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे आपकी बात? देखें, ये उन धरनों ने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। 7 महीने उन धरनों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, और चीन के सदर शी जिनपिंग जो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, इमरान खान की हटदर्मी ने कि मैं नहीं उठूँगा यहाँ से, और उनका दौरा जो है वो मौखर हो गया। और उसी हवाले से, उसी तनासब से जो CPEC का जो प्रोग्राम है वो 7 महीने आगे जा पड़ा। आप अगर 7 महीने पहले अगर वो मुआहदे साइन होते तो पाकिस्तान के साथ कीमती महीने बच सकते थे। तो हम वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लॉजिक एंड पॉलिटिक्स विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए जो भी तमाम जमातें एक लामल बनाएंगे, उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम अमल पैरा होंगे। और एक बात ज़रूरी है कहने का कि इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे, और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे, तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त ऑपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की ज़रूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुँचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। चलें आप सवाल। राजा जी फरमाइए, क्या आपको नून लीग की तरफ से कोई यकसुई नज़र आ रही है अपने मौक़िफ़ पे? आप पहले भी 3 हफ्ते जहाँ रहे हैं और आप नून लीग से तरले काटते रहे और इससे हेजिटेशन है, अब कोई यकसुई नज़र आ रही है इनकी तरफ से? सर मैं एक तो एतराज़ करता हूँ आपके सवाल पे। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब ख़ुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। बस, चलें।